So once again, it's been multiple times. So once again, you have Republic's executive editor Niranjan Narayanaswamy, senior associate editor Shravan Sen, CFO K. Sundaram, and an assistant VP Ghanshyam who have been summoned by the Mumbai police. We have Anant who is joining us live as we continue to bring out all the details from the police headquarters there. अनंत एक एक करके बताइए किन लोगों को आज दोबारा बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि कल से ये जारी है, दोबारा आज फिर से बुलाया गया है और हमारी एडिटोरियल टीम तक को नहीं बख्शा गया है। तो जरा बताइए आज क्या होने वाला है, कब किस टाइम पर किसको बुलाया गया है? देखिए अमिता, इस वक्त मैं एनएम जोशी मार्ग पर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर कुछ ही वक्त में जिन लोगों को समन किया गया, 4 लोगों को पुलिस की तरफ से समन किया गया है, जिसमें हमारे सीएफओ शामिल हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हेड शामिल हैं, श्रवण सेन और निरंजन। 4 लोगों को अभी तक समन किया गया। निरंजन और श्रवण अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे, जबकि हमारे सीएफओ जो हैं और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हेड, उन दोनों लोगों को पहुंचना होगा मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में अपने इस समन के लिए। लेकिन सबसे खास बात जो यहाँ पर अपने दर्शकों को बताने वाली होगी वो ये कि जब तमाम कोशिशें की गई परमवीर सिंह की तरफ से रिपब्लिक पर कुछ ना कुछ आरोप लगाने की, वो हर आरोप झूठा साबित हुआ। तो आखिरकार परमवीर सिंह ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, एक आयोजन को आउटकास्ट करते हुए जो काम किया वो ये कि रिपब्लिक की एडिटोरियल टीम के जो 1000 लोग हैं, उन तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसमें दो धाराएं बेहद महत्वपूर्ण। एक धारा आईपीसी धारा 34 का सबसेक्शन ए के तहत जो धारा कर की गई है, और दूसरा डिफेमेशन है धारा 500 का सबसेक्शन ए। इन 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी रिपब्लिक की टीम एनएम जोशी मार्ग के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़ी हुई है। कुछ ही वक्त में निरंजन यहां पर होंगे, कुछ ही वक्त में श्रवण सेन यहां पर होंगे, और तब जाकर के पता चलेगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सवाल रिपब्लिक से किए जाते हैं। Well, Yesha is also joining us, quickly going across to her for another live update, because 1,000 journalists being booked. This is first time in the history that has happened, Yesha, and it is sending shockwaves across the country because something like this is unprecedented and has never been seen before. What is exactly the Mumbai police up to, especially when it comes to targeting Republic journalists? Like we've seen, ever since this whole case started, the TRP scam, as they've been calling it, there's a particular target towards Republic TV. While there was no name of Republic TV in the FIR earlier, they still managed to mention in their press conference. Parambir Singh, Commissioner of Police, mentioned in his press conference that it was Republic TV which was involved, which clearly was not the case. However, over the last 2 weeks, we've seen that particular people of senior editorial and management have been called, have been summoned by the Mumbai police. We also saw earlier that Pradeep Bhandaria, consulting editor, was also detained at Khar police station, following which yesterday, when 1,000 people from the editorial team of Republic an FIR was filed against them, this raises a question because this has never happened before. The charges have been framed that it's disaffection amongst police members that have been incited by Republic TV. But when it comes to the Hansa report that they've been mentioning about, it clearly was the fact that a journalist had got the sources, and a journalist cannot be expected to inform what their sources are. In that case, if the police wants us to inform that what our sources are and why the editorial team is doing what they're doing, it clearly means that as per our press freedom, we are doing our job. And in that case, if there are 1,000 people against whom an FIR has been filed, it clearly raises a question about the intention of Mumbai police in this case. There are 4 people among the senior editorial team of our channel. So that is Yesha giving out details of all, again, our team members, our top team members of the Republic Media Network who have been summoned yet again by the Mumbai police, because Anant, we are cooperating with the police officials. We are complying with each and every summons that they have sought, because the trivial details, our CFO Sundaram, who has been asked to submit every transaction and detail of every journalist with the network within 12 hours, and once again today he has been summoned.
बिल्कुल देखिए बेटा, अब तक जितने भी समन जारी किए गए रिपब्लिक के किसी भी एम्प्लॉय को हर समन का जवाब दिया गया और हर तयशुदा वक्त पर वो व्यक्ति पहुंचा है कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में और वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन का इंटरोगेशन का सामना किया। लेकिन अब हालात ये हो चुके कि इससे पहले जो पूछताछ की गई थी वो टीआरपी स्कैम को लेकर के की गई थी, जिसके बारे में जितने सबूत सामने आए उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी सबूत में रिपब्लिक का नाम नहीं रहा। अब चूंकि परमबीर सिंह के तमाम आरोप झूठे साबित लगातार होते जा रहे हैं, तो अब हालात ये हुए कि पिछले 4 साल में रिपब्लिक के ऑफिस के अंदर जो भी खर्चा आया है, चाहे वो टॉयलेट पेपर का खर्चा हो, चाहे वो टिश्यू पेपर का खर्चा हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर का, हैंड वॉश का खर्चा हो, यहां तक कि जो बागों में बागवानी करने के लिए माली आता है उसकी तनख्वाह कितनी है, रिपब्लिक के एम्प्लॉयज को कितनी तनख्वाह दी जाती है, ऑफिस का खर्च कितना है, ये तमाम डिटेल्स जानना चाहते हैं परमबीर सिंह। लेकिन सबसे पहले वो कम से कम ये बताएं कि जो टीम अभी तक टीआरपी स्कैम की बात कर रही थी, टीआरपी स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अचानक से वो जानना चाहती है कि रिपब्लिक के पिछले 4 साल में क्या क्या, कब कब, कितना कितना खर्चा किया गया है, उसके पीछे की वजह क्या है। यही सवाल लगातार हम भी परमबीर सिंह से पूछ रहे हैं कि जो आपने जानकारी मांगी है, रिपब्लिक को तमाम जानकारी 12 घंटे के अंदर आपको देगा, लेकिन पहले बताइए कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इसका इन जानकारी का और टीआरपी स्कैम का आपस में रिश्ता क्या क्या लिंक है।